Last class, what we were doing, what we were doing in last class, right? Tenses. Yeah, it was present simple we were doing. So what we have done, we were speaking on a profession last day. So today, what I want you give the presentation on your father. So make one thing sure, you should not use anything in past. You can use two types of sentence structure. First, uh, but I can say three type of sentence structure you can use. So first, you can use one sec. Uh, yeah. First, you can use subject, first form of verb, S or ES. So you can use first structure, that is subject, first form of verb, S or ES, and object. The second structure can be subject is MR, is MR, one sec. And object. Third, you can use, you have already learned modal verbs. So don't forget, you can use modal verb as well. First form, object. So these are the things you can use easily in your presentation and speak about your father. Yes, Nehaji. First, it's your turn. But ma'am, actually, my father is not with us. So my presentation is on actually Of past. course, it will be in past tense, but Yes. let's not talk about your father. You can speak about your husband. Sorry, You can speak about your hubby. hobby. But I actually I made a presentation on my father. Dear, actually, we Thanks. are doing present tense. You are so nice that you have made presentation on your father. But the thing we are learning present simple. So if you will be speaking about your father, it will be completely in past tense. So I would request speak on your hubby or your brother, whoever you want. Or you can speak on your son, which is Ma'am, also okay. ma'am, Yes, Satvik. can I speak? Okay, till Neha ji is making her notes on her hubby. Okay, ma'am. You can speak. You can speak, Satvik. Yes, Satvik. Start speaking, beta. My Hello. father. Hello, everyone. My name is Atik. My father is my role model. Good. He is very nice. He is Hmm. very nice. Hmm. My father's name is Jaipal Chauhan. Hmm. He works in government school. He is a teacher. Hmm. He he is downwards person and calm. Down to earth, beta. He's down to earth person, not Ma'am, downward. downward. नहीं बेटा, never say downward. Downward का मतलब होता है नीचे या नीचा. आपके पापा डाउन टू अर्थ हैं, विच मीन्स बहुत ही ज्यादा विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही पोलाइट नेचर के.
तो डाउन टू अर्थ होता है बेटा डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ। मैम यस सात्विक, गो ऑन, स्पीक अप। he plays with me. He helps with my studies. He is very kind and calm person. गुड जॉब। He is my inspiration. He is my first teacher, friend, and inspiration. Thank you. Wonderful. Great job, Satvik. Now, bache, be careful. When you are speaking about a person, you should say down to earth. Now, what is the meaning of downward? Downward का meaning होता है नीचे की तरफ, ठीक है? जो भी चीज आपकी नीचे की तरफ होगी, उसके लिए आप down to earth का यूज, downward का यूज करोगे, like this. इसे कहते हैं downward. Is it clear, बच्चे? Satvik, is it clear? Yes, ma'am. Wonderful. Now, Neha ji, are you ready with your presentation? Yes, ma'am. Yeah, start. I'm going to give a presentation on my husband. Wonderful. My husband's name is Mohit Kumar. He works as a manager in his company. He inspires me a lot. He supports me in every situation, whether it is good or bad. He helps me a lot, even in my house chores. In my Hello? uh, again blank, ma'am. Hello. Hello. रख दो एक कान सुनते रहो काम भी करते रहो अपना पत्र लिख दो और नहीं सुना रहे होंगे ना हाँ तो उसमें यहाँ रख दो निकाल के अब अपना काम नहीं सुना रहे मैम कुछ और बोल रही है
हम नहीं बोल रही, खुद अभी नहीं बोल रही, अच्छे से नहीं बोलते। आप कॉपी निकालो अपनी, साथ साथ काम भी करते रहो, जब आपको समझाएंगे तो मैं बता दूंगी। चलो, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं ना, आप ही का टाइम बचेगा। पता है? Hello. 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 Yeah, guys, actually, there was so much fluctuation in network that I could not speak anything and I could not listen to you. Now we are back. I think the problem is sorted with us, with our network. Okay, so yes, you were speaking about your husband. If you don't mind, can I request you to repeat again, Neha ji? Okay, ma'am. Yeah. So, my husband's name is Mohit Kumar. He works as a manager in his company. He Wonderful. inspires me a lot. He supports me on every situation, whether it is good or bad. Hmm. He is a good son, good brother, and also a good father. He Hmm. always take care of his family and as well as my family also. He never let me down when there is a awkward situation. He makes me happy when I sad, and yes, I love him very much. Wonderful. That's a beautiful presentation. It was a small and loving presentation. But can you see I have written something on the screen? Pose, take, let, I said. Yes, Why have I written Neha ji? I did mistake. Yes, you are right, dear. You are speaking about your hubby. And hubby is only the one person on earth. You can have just one hubby on this earth. So why you are not using SRES? Forces, takes care, lets. He never lets me down. And don't say I said, say I am said. When I am said. Right, dear? Okay, ma'am. Make one thing sure, Neha ji. You cannot make a single sentence without verb. You can make thousands of sentences without subject or object, but you cannot make a single sentence without verb. So am is your helping verb. You cannot say I said. It doesn't make any sense. You should say I am said. Got it? Yes, ma'am. Good. Wonderful, wonderful. So yes, it was wonderful. Now you can enlarge this presentation, Satvik and Neha ji. How can you enlarge it? You can speak about their, achievements. You can speak about their positive things. You can speak about their negative things. You can speak about their, losses in his life. You can speak about his qualification. You can speak anything. So it will help you enlarge your presentation. Now, let me give you the strategy. Okay, before giving the strategy, I have Ankush ji with us. So, Ankush ji, are you all set with your presentation? Yes, ma'am. Yes, dear. Start speaking about your dad. Yes. My father name is Mr. Atmaram Mittal. He is Okay. very hardworking and kind person. So he completed his education till 10th, and after he has started his working. He starts. Ankush ji, he Sorry. starts. He starts his work, and he Mhm. he he has done many works, many Wonderful. businesses, Mhm. like many type of business Mhm. in his life, and he suffered a lot, like with their business. Sometimes they are profitable and sometimes they are not profitable, Mhm. but he never give up, Gives and up. gives up, and he continue with their business, and he helped me and my sister to achieve my he help
he helped me and my sister to achieve my dream and my sister dream. And now he is now 55-year-old and also and continue with their work. Okay. Wonderful, Ankushi. Now let me tell you one thing, dear. You should not use there. There is use for more than one person, but your father is the one and only person on this earth. You should say his. Whenever you are speaking about a man or a male or a boy, you should say his. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. So अगर आप लोग make one thing sure, किसी एक आदमी की या किसी एक लड़के की यानी मेल की बात करते हैं, it should be his. अगर आप फीमेल की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, her. पर अगर अंकुश जी एक से ज्यादा लोग हैं, लड़का लड़की डजंट मैटर, एक से ज्यादा लोग हैं, तब आप देयर का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. वंडरफुल. सो पापा एक है, देयर यूज नहीं होगा, हिज यूज होगा. Yes, ma'am. हाँ बेटा, सात्विक स्पीकर. Ma'am, nothing. Ma'am, I was speaking. Yes, ma'am. ओके. नाउ हेल्प आपको नहीं यूज करना. हेल्प्स, ही हेल्प्स मी एंड माय सिस्टर टू अचीव आवर गोल. तो यहाँ हेल्प्स आएगा, पापा के लिए एस और यस यूज करना पड़ेगा आपको. कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यूज आएगा. एस लगाना मत भूलिए नेहा जी एंड अंकुश जी. एस तो आपको यूज करना ही करना है. राइट. सो दैट्स वंडरफुल. यू गाइस हैव डन वेरी नाइस जॉब. बहुत छोटा प्रेजेंटेशन था पर अच्छा था. नाउ लेट मी स्पीक अबाउट यू. आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन दी. जो आप अपने पापा के बारे में, कल एक प्रोफेशन के बारे में बोल रहे थे और आपने एस और यस का यूज करा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जब आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसके अलावा कुछ भी. ओके, नो एस और यस. अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं गाइस? जब एक पर्सन था, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इट हो ही शी इट, और उसके अलावा नेम, सिंगल नेम, आपने एस और यस लगाई. पर अगर आप आई बोल रहे हो, अपने बारे में बात करें, आप बी बोलो, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, आप यू बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, आप दे यानी एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, या फिर आप प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम. इन ऑल दीज केसेस आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. दैट्स इट. अब जैसे अगर मैं आपके बारे में पूछूं, हाउ डू यू स्पेंड योर संडे, आप अपना संडे कैसे मनाते हैं? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप बर्थडे कैसे मनाते हैं? या हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली, आप दिवाली कैसे मनाते हैं? ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन आपको इस स्ट्रक्चर के साथ देनी पड़ेगी. अब इसे हम एक बहुत ही सुंदर सा मिक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं. कैसे? इसके अंदर आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया. यानी जब आप इसके अंदर मम्मी क्या करती हैं मेरे बर्थडे पर, पापा क्या करते हैं मेरे बर्थडे पर, ये सब भी ऐड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी आ रही होगी, ठीक है, जिसके अंदर एस और यस भी आ रहा होगा, और जिसके अंदर आप सारा अच्छे से सुंदर तरीके से बोलोगे, एंड तभी आप एक प्रोफिशिएंट स्पीकर बन जाएंगे. सो बी केयरफुल. जब भी आप ही का यूज कर रहे हो, ही का यूज कर रहे हो, शी का यूज कर रहे हो, इट का यूज कर रहे हो, या एक सिंगल नाम, सिंगुलर नेम, मम्मा पापा, सिर्फ एक इंसान है, तो आप लोग प्लीज एस और यस लगाओ. अदरवाइज ये केस आप सीख ही चुके हो. ठीक है. अब इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट किए बिना नेगेटिव भी बता देती हूँ. नाउ गाइस, अब आपको जब नेगेटिव बनाना है, डोंट फॉरगेट यू हैव टू यूज डोंट. डोंट, मैं डू नॉट नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं आपको डोंट सिखाऊंगी. ठीक है. डोंट फॉरगेट आपको डोंट एंड डजंट का यूज करना होगा. डज नॉट बोलना नहीं सीखेंगे आप डजंट सीखेंगे. एंड अब ऐसा और यस. मैम डज नॉट को डजन भी होता है. हाँ जी बेटा, आपको डजन ही सीखना है. सात्विक, आप डू नॉट या डज नॉट नहीं, डजन एंड डोंट बोलना. मैम I have learned. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू स्पीक. अब
यहाँ पे एस और एस का फंडा खत्म। बाय डिफॉल्ट दोनों केसेस में आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अगर आप लोग ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो डोंट आता है नेगेटिव में, डोंट। पर अगर ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो डजंट। So in this case, it should be doesn't. Right? बाकी subject, verb and object आपके सामने। So the thing is clear with everyone? Yes, ma'am. Yeah. Ankushi, is it clear? Yes, ma'am, clear. Wonderful. Now, what is your presentation for right now? What are you going to speak? क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा learning हम squeeze करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, spoken हमारा बढ़ता जाएगा, so that you can become very, very, very fluent. So now, what you guys are supposed to speak is a simple one. How do your family and you celebrate Diwali? So बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली. So Satvik, Ankushi and Neha ji, how do you and your family celebrate Diwali? Okay, so अब यहाँ पर आपको अकेले अपने बारे में नहीं बोलना, आपको अपने मम्मा पापा के भी बारे में बोलना है, दीदी और भैया के भी बारे में बोलना है. इवन आपको ये भी बताना आप क्या नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट, अब जैसे हम लोग वी प्रे हनुमान जी in the morning on the day of Diwali. आप कह सकते हो we don't pray हनुमान जी on the day of Diwali. Yes. So वो आप देख लीजिए आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. Right? So you guys have got 1 minute. Presentation long होना चाहिए. अब presentation long करने का तरीका बताती हूँ, especially नेहा जी, because you go blank. So क्या करना है? First of all, define Diwali. कभी भी now अंकुश जी, नेहा जी और सात्विक ध्यान से सुनो. जैसे ही कोई टॉपिक मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिवाली. डायरेक्टली बोलना मत शुरू करो, पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार करो. प्लेटफॉर्म कैसे तैयार होगा? पहले अपने टॉपिक को डिफाइन करो. ये टॉपिक है क्या? तो हमारा टॉपिक है दिवाली. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिवाली. ओके, देन आप यहाँ पर ये बता सकते हो व्हाट डू अदर पीपल डू ऑन दिवाली. बाकी के लोग दिवाली पे क्या करते हैं. प्रेजेंटेशन लंबा करने का तरीका है. What do other people do on Diwali? बाकी के लोगों का बता दो कि भाई ये लोग दिवाली पे, जो बाकी के लोग हैं हिंदुस्तान Ma'am, की. Yes, ma'am, Satvik. your people spelling is wrong. या बेटा. Okay, let me tell you. हम लोग के इंग्लिश में एक प्यारा सा वर्ड होता है एक्रोनियम. बोलो सात्विक, एक्रोनियम. Etorium. Let me tell you. Okay, so this is actually acronym. बोलिए acronym. Acronym. Yeah, Ankushi, Neha ji, you also speak acronym. 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 Yes. अब ये acronym क्या है? आप लोग जो WhatsApp लैंग्वेज, जो FB पे चैट करते हैं, जो इंस्टा पे चैट करते हैं, आप पूरे पूरे वर्ड नहीं लिखते. अगर आपको गुड नाइट विश करना है ना, तो आप बस इतना करते हो. ठीक है, आपका जो गुड नाइट होता है कैसे होता है सात्विक? गुड नाइट विश करके दिखाना ज्योति मैम को. ऐसे ही होता है? No, ma'am. कैसे होता है? Good night. नहीं नहीं, चैट में कैसे करते हो, टाइप कैसे करते हो? मैम मैं करता ही नहीं, मेरा फोन है. मैम आया. ठीक है, जनरली अगर आपको चैट में यू लिखना हो, अगर मान लो आपको यू टाइप करना है, तो आप खाली इतना करके छोड़ देते हो, राइट? No, ma'am. मैं छोड़ता. Yes, ma'am, right. Yes, ma'am. इस लैंग्वेज को एक्रोनियम कहते हैं. तो जो मैंने अभी एक्चुअली पीपल लिखा ना गाइस, ये एक्चुअली एक्रोनियम था. पर ठीक है, साथ में हमें कह रहे हैं तो हम इन्हें ठीक कर देते हैं. बेटा ये जो लैंग्वेज ज्योति मैम ने लिखी है, ये एक्रोनियम होती है. जो जनरली आपको बहुत जल्दी अपनी बात को बोलना है या टाइप करना है, तो आप पूरा वर्ड लिखने की बजाय उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते. इसे अब्रिविएशन नहीं कहते, इन्हें एक्रोनियम्स कहते हैं, क्योंकि सब अपने हिसाब से बना देते हैं. तो मैंने जो पीपीएल करा, पीपल, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा. ठीक है बेटा, समझ गए? Yes, ma'am. अगर आप व्हाट्सएप पे चैट करोगे, एफबी पे चैट करोगे, इंस्टा पे चैट करोगे, तो जनरली लोग इसी तरीके से बात करते हैं.
वो पूरा लिखने की बजाय थोड़ा सा लिख देते हैं। अब जैसे समथिंग अगर हमें लिखना है साथ में, इमेजिन करो हमें समथिंग लिखना है, तो हम बस इतना करके छोड़ देते, हो गया समथिंग, खत्म बात। गॉट इट बेटा? Yes, ma'am. क्योंकि पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होता है और चैटिंग हमें जल्दी जल्दी करनी होती है, तो हम जनरली छोटे में ही बात को खत्म कर देते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू, एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट डू अदर पीपल डू ऑन दिवाली? आप ये बता सकते हो, अच्छा खासा टाइम खिंच जाएगा। एंड देन जंप करो, व्हाट डू यू एंड योर फैमिली डू ऑन दिवाली? पहले अपना बता दो, व्हाट डू यू डू। उसके बाद अभी भी और लंबा करना है, व्हाट डज योर फैमिली डू बता दो। अब यहाँ फैमिली हम सबकी एक ही होती है, इसलिए डज यूज करा मैंने, ठीक है। सो व्हाट डज योर फैमिली डू? तो इस तरीके से नेहा जी, अंकुश जी एंड सात्विक, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन को ना एक एक घंटा खींच सकते हो, और मुझे वही सिखाना है। आप 4 घंटे भी बोलना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पीक नॉन स्टॉप। इज इट क्लियर? So now it's your time to make a presentation on Diwali. You have got 1 minute with all you three people. So take your time and start speaking after 1 minute. The time starts now. Yes, everyone, make your presentation. If you want any vocab assistance, you are most welcome. किसी को भी vocabulary related कुछ help चाहिए? Guys, I am with you. Please ask me. Yes, guys, are you all set? Yes, guys, I think the time is taken. Yes, Ankushi, Neha ji, Satvik.
You guys have taken enough time. Can we start now? Ma'am, I have prepared. Oh, wow, wonderful. Neha ji, Ankushi, are you guys ready? Yes, yes, ma'am. Wonderful. So, can we start now? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, Satvik, beta. Go ahead. Ma'am, may I go to washroom? Sure, baby, you can. So cute. Okay. Yes, Neha ji, till then, can you start speaking? Yes, ma'am. Yeah, go ahead. So, my presentation is on Diwali. Diwali is the main or major festival of India. Wonderful. Uh, I and my husband lives in Noida, Okay. but on the occasion of the Diwali, we go to our hometown. Wonderful. Before Diwali, there is another festival called Dhanteras. On Lovely. this day, uh, we do puja in our house in Noida itself, and after that, we go to our hometown. There we celebrate Diwali with our whole family. Mhm. We make delicious food on this day, Mm. and in the evening, we do puja of goddess Lakshmi and the god Ganesh ji. After puja, children fire the firecrackers and enjoy a lot. Mhm. Um, and yes, with children, we also enjoyed a lot. Not bad. You have spoken, but again, it is very short. But when you are speaking about you and your husband, how can you speak lives? You should say live because you are speaking about two people. So me and my husband live. Yes, yes, Okay, Neha ji? Yeah, right. that's wonderful. Now, Ankushi, may I ask you to speak? Yes, ma'am. Yeah. Go ahead. Carry on. Diwali is a festival of joy, and on this occasion, our Lord Ram give us an example that we have to stay with the truth, and also Ramji came their home after 14 years. Hmm. So, how my family celebrate, me and my family celebrate Diwali. So before few days of Diwali, uh, I help me and my sister help my mother to clean our house. Wonderful. Then, before 2 days of Diwali, there is a festival, Dhanteras festival. So on this occasion, like every family, uh, like Hmm. other families, my Hmm. family also buy some good thing. Hmm. Uh, and then on the next day before one day of Diwali, Hmm. the name is Little Diwali. So on this Yes. Diwali, we do puja, Hmm. and on the day of Diwali, my mother, uh, my mother Hmm. makes my mother make sweet for Makes. us. Yeah, makes. But ma'am, Makes. My mother makes. makes my mother makes sweet for us, Wonderful. and then we eat these sweets. And Mhm. after that, I went to market to buy Mhm. some crackers, Mhm. and at night, me with my family and with my neighbor,
we celebrate Deepavali with crackers, Hmm. and on the next day of Deepavali there is a Govardhan Puja. So we also celebrate Govardhan Puja. That's all about. Okay, wonderful. So now, Ankushi, as you can see, फिर से राम जी एक ही थे या हैं, तो देर नहीं आएगा डियर, हिज आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैन के साथ, एक आदमी Ma'am, के can साथ. I speak? Yeah, beta, I'll give you chance. First, we are discussing Ankush sir's mistake. Okay, बच्चे? Okay, ma'am. Okay, बच्चे. So there will be wrong here, Ankushi. You should say his. Okay, Ankushi? Yes, ma'am. या राम जी एक हैं तो आपको हिज यूज करना है. अब क्योंकि आपकी फैमिली खरीदती है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली एक है, यू शुड अगेन यूज एस, तो बाइज हो जाएगा. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा माइन्यूटली इसलिए चेक करी हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी नहीं है, Ma'am, प्लस आप but बहुत फ्लुएंट नहीं है. ma'am, हाँ. but in family there are 2 members, so why we use S? Okay, dear. Even in family, there are 100 members. You will use S, dear, because family एक है. Family में member बहुत सारे हैं. देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरी क्लास में अभी हम बात करें तो नेहा जी हैं, अंकुश जी हैं और सात्विक हैं. 3 स्टूडेंट हैं और मैं चौथी हो गई. तो क्लास मेरी जो है वो देखा जाए 4 लोगों से बनी है. तो मुझे लर्न यूज करना चाहिए, पर मैं लर्न्स यूज करूंगी. लेकिन अगर यही अंकुशी में स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट मेरे एक से ज्यादा है, क्लास तो मेरी एक ही है, स्टूडेंट मेरे एक से ज्यादा है. यहाँ पर एस आ गया. अब मुझे वर्ब पे से एस हटाना है. एक चीज ध्यान रखना, आप तीनों, बहुत सिंपल सा छोटा सा बच्चों जैसा ट्रिक दे रही हूँ. अगर आपके सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में नहीं आएगा. यहाँ मेरे सब्जेक्ट में एस था, वर्ब में से हट गया. अगर मेरे सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में आएगा. ये प्रेजेंट सिंपल का रूल. एक जगह एस लगेगा ही लगेगा. अब डियर, अगर आप बात करें अंकुशी, फैमिली में एस नहीं है. देखिए, फैमिली में एस है अंकुशी? No, ma'am. नो. तो आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगा. पर अगर यही हम मेंबर्स की बात करें, यही हम मेंबर्स की बात करें, एस है Yes, ma'am. तो यहां से हटा दो. सिंपल. एक जगह एस लगा दो, जहां मर्जी लगाओ. सब्जेक्ट पे एस है तो अपना वर्ब पे मत लगाइए, वर्ब पे एस है तो सब्जेक्ट पे मत. छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है. सो फैमिली क्योंकि आपके पास एक है, हमारे बहुत सारे परिवार नहीं होते, हमारा एक ही परिवार होता है, मम्मा पापा भाई बहन और हम. उसमें चाहे 50 लोग हैं, 25 लोग हैं या 100 लोग हैं, उससे लेना देना नहीं, पर परिवार वो एक ही है. क्योंकि बाकी के जितने भी परिवार है ना, वो चाची का परिवार है, बुआ का परिवार है, मासी का परिवार है, दादी सॉरी ताऊ जी का परिवार है. मेरा कौन सा, कितने परिवार है अंकुशी, आपके कितने परिवार हैं? 1, ma'am. 1. तो आपको एस और एस लगाना है. हाँ, आपके घर के मेंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, विच इज ओके, राइट. सो ये फंडा है. अच्छा, पूजा. आपने पूजा एक वर्ड यूज करा, बहुत सुंदर वर्ड है. इसकी इंग्लिश में आपको बता देती हूँ. एवरीवन, सात्विक, नेहा जी एंड अंकुशी, आप लोग आज से पूजा को इंग्लिश में कहेंगे वेनरेशन. स्पीक अप. Veneration. Veneration. या तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जो भी हम लोग घर में हवन करते हैं, ये सब वेनरेशन में आ जाते हैं. सारे ए टू जेड वेनरेशन में आ जाते हैं. अब कहेंगे मैम वर्शिप ही तो होता है. गाइस, वर्शिप होता है आराधना. हमने इंग्लिश की बैंड बजा रखी है. वर्शिप का मीनिंग होता है आराधना किसी एक आइडल की. शिव जी की आराधना तो आप वर्शिप कहिए. अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, वर्शिप कहिए. अगर आप दुर्गा माँ की आराधना कर रहे हो, लक्ष्मी और गणेश की आराधना कर रहे हो, तो वर्शिप कहिए खुल के. लेकिन पूजा, पूजा में आपकी जोत जलाना, धूप बत्ती लगाना, आपका भजन कीर्तन हवन, सारी चीजें आ जाती हैं. इसे कहते हैं वेनरेशन. एक और होता है प्रे. प्रे होता है प्रार्थना करना. ठीक है, इसमें कोई ऐसा, हम जो सुबह सुबह उठ के वो पाठ पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं या श्लोक या वो मंत्र उच्चारण करते हैं,
ना तो वर्शिप में मंत्रोच्चारण पाठ पढ़ना पूजना और ये सारी चीजें आ रही, ना ही प्रे में आ रही। प्रे में तो सिंपली प्रार्थना करना। जैसे अपने हम सब बहुत लालची हैं और सबसे ज्यादा भगवान के आगे झोली फैलाते हैं, तो हम सबसे पहले उनसे मांगते, वो प्रयोग, या आप मेरा इंटरव्यू पास करा दो, मैं आपको 101 रुपए का भोग लगाऊंगा, दैट इज प्रे। ठीक है, जबकि वेनरेशन में A to Z सब कुछ है। गॉट इट गाइस? तीनों वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या सो नाउ नेक्स्ट, स्वीट। स्वीट बहुत अच्छा शब्द है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें अंकुशी, पर मैं आपको एक और अच्छा सा वर्ड दे देती हूँ, डिजर्ट। मेक इट योर हैबिट टू स्पीक डिजर्ट। स्पीक अप। Desert. या डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट तो रेगिस्तान होता है। देखिए, ये हो गया आपका Desert. रेगिस्तान। हाँ, ये है आपका रेगिस्तान, DESERT, जहाँ पे रेती रेत होती है, और ये है डिजर्ट, डी, पूरा डी साउंड करिए, डिजर्ट। स्पीक अप। Desert. वंडरफुल। नेहा जी, स्पीक अप। Dessert. सात्विक, सात्विक, हेलो सात्विक, सात्विक वेयर आर यू? मैम डिजर्व। हाँ, सो डिजर्ट में आपको पूरा ई साउंड करना है, जबकि इसमें ए साउंड करना है। डेजर्ट, रेगिस्तान, डिजर्ट, मीठा, कुछ भी मीठा, चाहे आपने देखिए, स्वीट का मतलब होता है मिठाई, जबकि डिजर्ट में आपने जो खीर, हलवा या जो भी मीठा घर पे भी बनाए, सारे इंक्लूडेड हो गए। बाकी स्वीट भी कोई बुरा वर्ड नहीं है, पर मुझे आपको नया सिखाना है तो मैंने आपको डिजर्ट सिखा दिया। अच्छा, ये शब्द बिल्कुल गलत बोला। पास्ट टेंस कहाँ से आ गया अंकुशी? वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Wonderful. So yeah, that's lovely. Keep doing like this. And now let's move to Satvik. Yes, Satvik, start speaking with us. सात्विक, पानी पीने गए हो? हेलो सात्विक, सात्विक वेयर आर यू? हेलो सात्विक, सात्विक, we cannot listen to you बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। Yes बच्चे, speak up. डिजर्ट। Now you can speak your presentation. On Diwali there was we our family and puja, and we burn out crackers after 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 doing blast the crackers. I get so many gifts and also give so many gifts to others. And we after puja we Diwali is known as lightning of festival. Festival of Lights. It is called light. Ma'am, I am speaking one more time. एक्चुअली बेटा आपने सारा ही गड़बड़ बोल रहा है आज। सात्विक अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट अच्छी नहीं है प्रेजेंटेशन। सो नो वरी, नॉट एन इशू। कल आप लोग मुझे ये बताएंगे हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एंड हाउ डज योर फैमिली सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके सिस्टर, ब्रदर, आपके फ्रेंड्स, सबके बारे में बताइएगा कि वो आपके बर्थडे पर क्या करते हैं और आप अपने बर्थडे पर क्या करते हैं। तो यहाँ पे आई भी आएगा, यहाँ पर ही, शी, इट, मम्मी पापा सब लोग आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, सब आएंगे। एक चीज और बच्चे, मैंने पूजा का इंग्लिश बता दिया, फिर भी आप पूजा पूजा कर रहे हैं। वेनरेशन बोलिए, स्पीक अप। वेनरेशन, सात्विक। Veneration. हाँ, नॉट वेना, इट्स वेने।
वेनरेशन, Veneration. यस, वेनरेशन इज पूजा पाठ जो आप करते हैं। सो आप प्लीज पूजा करनी बंद करिए, वेनरेशन करना चालू करिए, ठीक है। सो यस, नाउ बी प्रिपेयर्ड, कल का टास्क है, तो आई होप आप लोग वंडरफुली करेंगे। एंड इसमें आप पिछले बर्थडे की नहीं, हर साल जो आपका बर्थडे आता है उसकी बात कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट सिंपल हर साल, हर महीने, हर दिन, हर रात, हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट, इसमें हर आ जाता है। यानी आपकी आदत, आपका रूटीन, आपका तरीका, ये सब के सब इसमें आते हैं, सारे के साथ, ठीक है। सो बी केयरफुल। आप लोग को कल जो प्रेजेंटेशन बनानी है अपने बर्थडे पर बनानी है, और सिर्फ अपना नहीं बताना कि आप क्या करते हो, आपको मम्मी क्या करती है ये भी बताना है, पापा क्या करते हैं ये भी बताना है, और अगर वो कुछ नहीं करते वो भी बता दो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन माई बर्थडे माई फादर डजंट डू एनीथिंग स्पेशल, ही जस्ट ब्लेसेस मी and gives me gives me good wishes। तो ठीक है, काफी है। मुझे नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, डजेंट मैटर, बट आपके सारे मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एंड नेहा जी, आप अपने हस्बैंड को, अपने सन को, अपनी मम्मा, अपनी सिस्टर इन लॉज, अपने पूरे इन लॉज को इंक्लूड कर दीजिए, राइट नेहा जी? Okay, okay, ma'am. Okay, dear. So this is all about today's class. Tomorrow, be prepared with all your presentation on your birthday, and we will be learning the next tense. So I hope Lakshmi ma'am जो absent चल रहे हैं एक दो दिन से, I don't know what's wrong with her. I will message her and ask her. So she should be also present क्योंकि ये चीजें आपको आगे fluency में help करेगी. So yeah, see you tomorrow and don't miss the class Ma'am, because one tomorrow. question I have, Yes, Ankushi. like we are using people or peoples. So what is the difference between both, and can we use peoples? One sec. Let me share the whiteboard. So what you are saying, Ankushi? I'm asking about difference between people and peoples. एक तो आप people बोल रहे हैं, ठीक है, और Another one दूसरा, is peoples. Peoples, Yeah. P-O-P-L-E-S. चलिए, When pupils means Not the peoples, it's people. Yeah. ठीक है, चलिए। Now let's talk about it. So first of all, Ankushi, people. People, पहली बात तो बेटा सात्विक, सात्विक pupil कुछ नहीं होता बेटा। Pupil नहीं पता। मैम पीपल्स नहीं होता कुछ भी। हाँ, वही, वेरी गुड। बी केयरफुल। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन। शनिवार को हम सब एक पेड़ की पूजा करते हैं, वो पेड़ कौन सा है अंकुश जी? गुलमोहर। People. कौन सा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये गुलमोहर कहाँ से ले आए तो? चलिए, ठीक है। तो ये जो पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं ना, ये पीपल है, और इंग्लिश में इसका मतलब है लोग। प्रोनाउंसिएशन पीपल, इंग्लिश में लोग। नाउ अंकुश जी, ये कोई वर्ड ही नहीं, ये हमारी बेवकूफी है, हमारी रॉन्ग इंग्लिश है जो हमने बना रखा है। ये कुछ नहीं होता। हाँ, आपका ज्यादा मन है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसके लिए मुझे फिर से डिटेल क्लास लेनी होगी, बस आप छोटा सा समझ लेना। पीपल्स, ये होता है एपोस्ट्रोफी एस, और जहां भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाए समझ जाइए ये कह रहे हैं का के की रिलेशन बनाने। जैसे अंकुश, अंकुश एपोस्ट्रोफी एस, फोन, यानी अंकुश का फोन। सात्विक बेटा, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखी है, मैंने एक्रोनियम लिखा है, ठीक है। चलिए, अंकुश का फोन। तो अगर आप कहते हो पीपल्स, तो इसके साथ कोई भी नाम लगा दीजिए, जैसे पीपल्स फ्रीडम, पीपल्स चॉइस, पीपल्स राइट, लोगों का अधिकार, लोगों की चॉइस, लोगों की आजादी। तो ये पीपल्स हो सकता है। अब आता है ये वाला, इसको कहते हैं प्यूपिल्स। बोलिए आप तीनों, प्यूपिल्स, स्पीक अप। प्यूपिल। प्यूपल। नहीं Pupil. बेटा, पल Pupils. नहीं, Pupils. पिल, या प्यूपिल्स। प्यूपिल्स। अब प्यूपिल। आप लोग मेरे कौन हो? आप लोग मेरे Student. कौन हो? Student. स्टूडेंट्स। तो ये Student. प्यूपिल ट्रेडिशनल इंग्लिश में स्टूडेंट्स को बोला जाता है। जो शिष्य होते हैं उनको प्यूपिल्स भी कहते हैं। सो बी केयरफुल, प्यूपिल्स होता है
पर उसकी स्पेलिंग ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, PUPILS। प्रोनाउंसिएशन है प्यूपिल्स, पूरा यू का साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है, प्यूपिल्स। मीनिंग है शिष्य, जो आप मेरे हो, ठीक है। और ये है पीपल, हमेशा ध्यान रखना शनिवार को जिस पेड़ की पूजा करते हो प्रोनाउंसिएशन वही है पीपल। इसका मीनिंग है लोग। अगर आपको एस लगाना है अंकुश जी तो ये वाला लगेगा, इसके अलावा दुनिया का कोई एस नहीं लगेगा, और इसका मतलब होता है का के की, एक रिलेशन बैठाना। इसके There is a आगे आप word. There क्या, is a word peoples. POPLES. हाँ वो Without ये वो apostrophe. हाँ वो कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पर आपको वो दिख रहा है, दिस मीन्स दे हैव कमिटेड अ मिस्टेक और देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। No, there is written that these peoples show the community. तो ये रॉन्ग है, कुछ है ही नहीं। आपके इंग्लिश में पीपल्स जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे इंग्लिश में। आप मुझे जहां पर भी आपने ये देखा है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए या उसका पिक्चर भेज दीजिए, मैं आपको प्रूफ कर दूंगी पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में पीपल्स जैसा अंकुश जी कुछ भी नहीं है। हाँ ये अगर है तो ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, पर ये कुछ नहीं। इज इट क्लियर? I just translate the word. The word people mean a collective group of human beings. सॉरी, स्पीक अगेन। हेलो Yes, ma'am. अंकुश, And या the अंकुश जी स्पीक word अप। people mean collective group of human being, यस यू आर राइट, and the यू आर। other word peoples mean the same people, but it is used to donate the group of denote the group of people belonging to different communities. You are checking the dictionary, dear? No, ma'am. I am just search on Google people where's peoples. Hmm. So in normal people, it is Hmm. denoted for human being, and for Hmm. peoples, it is used to denote the group of people belonging to different communities, Okay. religions. So maybe, to be honest, maybe I have no information on this. मैंने peoples के बारे में ऐसा अभी कुछ भी सर्च नहीं किया है, to be honest, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी peoples का यूज नहीं करते हैं कहीं पे भी। हाँ, people एक कलेक्टिव नाउन है जो कि यूज होता है फॉर द पर्सन। बाकी peoples आई हैवंट लर्न अबाउट इट, इसके बारे में मैं एक बार सर्च कर लूंगी, थोड़ा सा पढ़ लूंगी, देन आई विल। Got it, dear? Okay, ma'am. या अंकुशी, तो थैंक यू सो मच। आपने जो वर्ड मुझे बोला, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ है, क्योंकि इंग्लिश भी अपडेट होती रहती है, जो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आया, आई विल वर्क ऑन। ओके Okay, ma'am. ओके गाइस, so see you, yeah, see you guys, and I will be working on this word peoples, whatever it is. Okay, bye bye Thank you, ma'am. everyone. Bye, Bye, ma'am. ma'am.